गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप लोगों को पता है सैटरडे को आप लोगों का सॉरी नॉट सैटरडे, संडे को आप लोगों का टेस्ट है दो चैप्टर्स का, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 की रिवीजन हम पहले कर चुके हैं, चैप्टर 4 का अब रह गया पार्ट। क्या आप लोग इस सैटरडे के लिए रेडी हो फॉर टेस्ट? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर द टेस्ट ऑन सैटरडे? रेज योर हैंड। ओके, वेदिता, खालिद, Ishman, Harman. Okay, then you have, okay, Sumit. Got it. So you all have your test on Saturday instead of Sunday. Today, sorry, not Saturday. What about Friday? Friday. How many of you are ready for Friday? Friday. Okay, Ishman, Vidita. How many of you are ready for test on Friday? Mukul, yes, speak out. Okay, Mukul. So, Achhay, can I finalize your test on for Friday if it's comfortable with all of you? How many chapters? 2 chapters, chapter 3 and chapter 4. Yeah, let it be only third chapter on Friday. Yes, Then ma'am. okay, raise your hands. Okay, chapter 3 on Friday, raise your hand fast. Okay, got it. So you all have your test on Friday for chapter 3. Okay, so instead of class, you all will be having your test on Friday. Today is Wednesday, so on Friday you all have your test. And I have already shared questions. I'll try to send more questions today. Try to practice. But I have told you to practice more questions. The more you will practice, the more you'll get marks. The probability increases only when you practice a lot for MCQs. और आप लोगों को पता चल चुका है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि नीट के एग्जाम्स हो रहे हैं इस साल, तो आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज ये बच्चे और नेक्स्ट ईयर ड्रॉपर्स भी, तो बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन नेक्स्ट ईयर होता, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल कंपटीशन होता है। तो इस साल अभी हो रहा है नीट, तो लेट्स सी how it goes. So I'm going to start with the next chapter, that is reproductive health. So it's a quick revision for reproductive health. Chapter 4, so reproductive health में it refers to complete physical, mental, social and behavior aspects of reproduction. So it includes, ये हम कर चुके हैं चैप्टर, बहुत easy chapter है reproductive health. So I'm going quickly for its revision. Reproductive health. Reproductive health is the total well-being in physical, emotional, behavior and social aspects of reproduction. Question आता है कि how it is affected. तो आपकी NCERT में given है and you have to read your NCERT first for any chapter. तो सबसे पहले आता है health is affected by reproductive health की definition आपको बता दी है, total well-being in physical, emotional, behavior and social aspects of reproduction. पूछा जाता है how it is affected. तो health में it is affected by 3 factors which are given in your NCERT exams, NCERT book, sorry. Health is affected by, सबसे पहला फैक्टर आता है जेनेटिक. तो जेनेटिक मींस जीन लेवल पे आ गया डिसऑर्डर्स या डेफिशिएंसीज. दूसरा आता है इन्फेक्शंस विच वी कैरी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स. एंड लास्ट इज योर लाइफस्टाइल that includes your food, your water, your rest, your exercise. So this is your lifestyle. So these are the 3 factors on which our health is dependent. Health is affected by 3 factors: genetic disorders या deficiencies, infection and lifestyle. अब इसके लिए हमारी कंट्री ने इस RHP रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और इनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज की थी, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्या थी और क्या स्ट्रैटेजीज हैं. तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, तो प्रॉब्लम्स ये थी जिसमें सबसे पहले स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एक्शन प्लान था, वो जो प्रोग्राम्स थे नेशनल लेवल पे, वो हमारी कंट्री में शुरू हुए थे और उसी के अंदर आता है RCH,
RCH प्रोग्राम। तो RCH में मैंने आप लोगों को बोला था, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इट्स फुल फॉर्म इज, RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंडर मेन एम इसका ये था RCH का, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका मेन मोटो था to create awareness among people about reproductive organs. Okay, तो reproductive organs के बारे में awareness, स्नेह पूछना है बेटे कुछ? is to create awareness. मुझे you're not audible, स्नेह. Oh, ma'am. Okay, got it. So its main aim is to create awareness among people about reproductive parts, reproductive organs, क्योंकि जो बच्चों को बतानी चाहिए चीज़ें आप लोगों को बताया था, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एडोलेसेंट्स, और जो डिजीजेज है एसोसिएटेड विद दीज एक्सेसरी ऑर्गन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हमने जो ये चैप्टर शुरू किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको डेफिनेशन बताई थी, इट इज अ कंप्लीट टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ reproduction. It is affected by 3 factors: genetic disorders या deficiencies, दूसरा infection, तीसरा lifestyle। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा what are the problems associated with it and the strategies। तो हमारी कंट्री जो है was the first one in the world to initiate these action plans at national level, और इसमें सबसे पहला प्लान था RCH, reproductive and child health care program। इसका मेन एम था to create awareness among people about the reproductive organs, reproductive organ and the diseases or the deficiencies related to this reproductive organs। adolescents भी इसी में ही डिस्कस करते थे, the changes associated during this period। फिर लास्ट में आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंटली STD, दैट इज योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये मेन एम इसका था। फिर इसके बाद और चीज़ें जो इसके साथ एसोसिएट की गई, पहली तो आप लोगों को बता दी है, अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दूसरा, टू गिव नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, to give knowledge, to impart knowledge about the birth control methods। तो मेथड्स जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं पता है आप लोगों को, बैरियर मेथड, इवन दी प्री नेटल केयर, प्री नेटल और पोस्ट नेटल, बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद, मदर एंड चाइल्ड दोनों की, प्री नेटल प्रेग्नेंट मदर की, पोस्ट नेटल मदर एंड चाइल्ड की, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वालिटी ऑफ सेक्स। तो इन सब प्रोग्राम, इस सब के अंदर ये चीज़ें आती थी। और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यूज किया गया, टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज ग्रुप। एज जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, फीमेल्स जो हैं वो एलिजिबल हैं 18 ईयर्स में मैरिज के लिए, और मेल्स की जो एज है दैट इज 21 ईयर्स। लेकिन अभी 18 ईयर्स में लीगल है मैरिज करना, बट पहले इट वाज 21 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल। अब इसके अंदर जो मैंने अभी बताया बर्थ कंट्रोल मेथड्स या फिर मेटर्निटी या चाइल्ड हेल्थ प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, तो इसी के अंडर RCH के अंडर जो आया, जो प्रोग्राम्स जिसमें मेटर्नल, आपसे अभी डिस्कस किया था, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके अंदर मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर जो प्रोग्राम थे, इसके लिए सेंटर्स बनाए गए, और सेंटर्स में फीमेल्स को गाइडेंस दी गई, मदर्स को गाइडेंस दी गई बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। तो गाइडेंस और असिस्टेंस, हेल्प बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी, अपने आप को ध्यान दें, बच्चों को ध्यान दें, सेफ्टी। फिर इसमें मेटर्नल में बच्चों के लिए उन्होंने किया पोस्ट नेटल केयर, बच्चे को पूरी डाइट मिल रही है, बच्चे को पूरी वैक्सीनेशंस मिल रही हैं। इवन दे अरेंज, they give this, they under the milk feeding programs, जो फीमेल्स जिनके बेबीज अबॉर्ट हो जाते हैं या जिनके कोई प्रॉब्लम थी, they cannot feed their baby, और ऐसी फीमेल्स जो लेक्टेटिंग मदर्स हैं, they can donate their milk। और ये फीडिंग सेंटर्स में उन बच्चों को जो डिप्राइव्ड है अपनी मदर से, उन बच्चों को ये दूध दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मदर्स का प्रिजर्व करते हैं। तो अरेंज मिल्क फीडिंग प्रोग्राम्स। इवन दे हैव ट्रेन्ड मिडवाइव्स, मिडवाइव्स होती हैं नर्सेस
जो इनकी केयर करती हैं मदर की और बच्चों की, एंड टू एजुकेट अंडर दिस प्रोग्राम दे हैव स्पेशल they have arranged a special team जिसमें they educate the newly wedded couples about the advantage of small family. तो आई थिंक ये सभी को पता चल गया होगा RCH प्रोग्राम, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। फिर इसके बाद आया जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या हुआ जब सब हेल्थ फैसिलिटीज, सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हो रही थी या फिर इन्फेंट डेथ हो रही थी, MMR और IMR बोलते हैं। MMR क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जब ये डिक्रीज हो गई एंड इंक्रीज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, दिस लीड टू द एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 1900 में थी 2 बिलियन, in 1900 that goes to 6 billion in 2000। और अब माना गया कि क्या इसका रीजन क्या है इतना पॉपुलेशन इंक्रीज का। तो सबसे पहला पॉपुलेशन इंक्रीज का होने का कारण था डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन या डिक्लाइन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, नॉट चाइल्ड, इट इज इन्फेंट। इन्फेंट होता है 0 ईयर्स, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता उसको बोलते हैं इन्फेंट। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, decline in death rate of these two, increase in number of people in reproductive age। तो जहां मैंने आपको बोला था अनएम्प्लॉयमेंट, अब इंडिया में हम मानते हैं अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयड मतलब कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा है, जो आप लोगों से शुरू होती है 13 to 14, टीन एजर से शुरू होती है टिल मेनोपॉज। फीमेल्स के केस में बात करते हैं तो 55, वो एज में लोग इंडिया में ज़्यादा है। वो कैसे पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयड जो है लीड्स टू पॉवर्टी एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये रीजंस आए इसके, तो इसका माना गया क्या इसका कॉन्सिक्वेंस था इतनी पॉपुलेशन बढ़ने से, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए। तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एनर्जी क्राइसिस। तो पहले तो अभी तक तो यही चल रहा था, पेट्रोल और डीजल के रेट्स हाई चल रहे थे। अब तो आप देख सकते हो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, फेमिन्स, कहीं कहीं फेमिन्स है, पानी नहीं है, कहीं पे फ्लड्स इतने ज़्यादा है, सारा का सारा शहर डूब रहा है। दिस लीड्स टू सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो, लोगों को रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है। तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें, तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फूड की, स्पेस की। मैंने अभी बताया खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली लोगों के पास काम ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और दिस लीड्स टू पॉवर्टी। इसलिए हम फिर से वापस गरीबी की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस क्यों हुई थी, क्योंकि जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम है। और लास्ट में इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है दैट इज इको डिग्रेडेशन। इको डिग्रेडेशन, इको डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि इको डिग्रेडेशन मतलब इकोलॉजी खराब हो रही है। इकोलॉजी क्यों हो रही है, पोल्यूशन। कई लोग तो ये मान रहे हैं कि जो ये फ्लड्स आ रहे हैं, फेमिन्स आ रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। जो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं चाइनीज और या फिर डिफरेंट कंट्रीज, तो दे आर इम्पैक्टिंग आर, दे आर कॉजिंग दिस डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से फ्लड्स बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि क्लाउड्स और वाटर साइकिल सारा डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट इज, अब पानी अगर हर जगह होगा तो दिस विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन। तो पोल्यूशन एंड सैनिटेशन, तो इको डिग्रेडेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ कैन वी कंट्रोल अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेथड्स दिए गए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स में
अभी डबलिंग टाइम जो है पॉपुलेशन का आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज आफ्टर 35 ईयर्स, डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। और अगर डबलिंग टाइम मतलब पॉपुलेशन डबल हो जाती है आफ्टर एवरी 35 ईयर्स, पॉपुलेशन इज डबलिंग, बट अब तो बहुत कम हो चुका है। अगर ये ऐसा होता रहा तो ह्यूमन बींग्स के लिए आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल, प्लानिंग, प्लानिंग जो है फैमिली प्लानिंग हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को आप एजुकेट करना चाहिए अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। तो एजुकेशन इज द मेन फैक्टर। फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग, कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके तो आपको फाइन लगेगा। जैसे चाइना में इफ़ यू हैव मोर देन 1 चाइल्ड, अगर आपका एक से बच्चा ज़्यादा है तो आपको जेल है, बच्चा उठा के ले जाते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर देन 1 चाइल्ड, और दूसरे बच्चे को ऑर्फनेज में डाल देते हैं। और नेक्स्ट है इसमें इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज। मैरिजेबल एज जो है बढ़ा दो, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में शादी होगी उतने बच्चे ज़्यादा होंगे। तो ये मेथड्स हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। नाउ देयर आर फ्यू मेथड्स इन विच बर्थ ऑफ द बेबी कैन बी कंट्रोल, तो उसको हमने नाम दे दिया बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स, पॉपुलेशन आपको बता दिए हैं कैसे हम कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल। नाउ कमिंग टू बर्थ कंट्रोल मेथड, तो बर्थ कंट्रोल मेथड में आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एक मेथड है विच इज नोन एज टेम्पररी। वो आपने 35 इयर्स का बताया था। बच्चे एक मिनट, वो 35 इयर्स के बच्चे डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन जो है ना डबल हो रही है, दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन जो है अगर आज 1000 है, सपोज 1000 है, 35 इयर्स बाद 2000 हो जाएगी। पॉपुलेशन अपने आप को डबल कर रही है। आपकी एनसीईआरटी में 35 या 33 इयर्स, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी डबलिंग टाइम। ओके ओके रू, यस मैम। okay, now coming to temporary method, तो टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड और MTPs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो टेम्परेरी, परमानेंट एंड MTP। MTP इज व्हाट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो डॉक्टर्स की मर्जी से होता है। MTPs बाय गिविंग इधर मेडिसिन और एबॉर्शन करवाना। अगर हम बात करें टेम्परेरी, तो टेम्परेरी मेथड में 2 चीजें आती हैं, एक आता है नेचुरल मेथड, एक आता है बैरियर मेथड। टेम्परेरी के अंदर है नेचुरल एंड बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड आप लोगों की एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज सेफ पीरियड। सेफ पीरियड सिर्फ ओव्यूलेशन की ड्यूरिंग व्हेन द एग इज रिलीज्ड, उसमें उन दिनों में कॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि अगर आपको याद हो, इट इज द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन एग इज रिलीज, ओव्यूलेशन अकर्स। तो 14 to 17 के बीच में जो डेज हैं, दे आर कंसीडर्ड नॉट एज सेफ पीरियड। वो जो डेज हैं दे आर कंसीडर्ड एज रिस्की डेज, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे आर मोर। तो उसके आसपास जो डेज हैं दे आर कंसीडर्ड एज सेफ पीरियड। फिर उसके बाद और मेथड आप लोग पढ़ चुके हो। पहला आता है सेफ पीरियड, दूसरा आता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इज कॉपुलेशन, तो बिफोर एजैकुलेशन अगर फीमेल अपने पेनिस को फीमेल की बॉडी से विड्रॉ कर लें, दैट इज नोन एज कोइटस इंटरप्टस। थर्ड पार्ट आता है लेक्टेशनल एमिनोरिया। लेक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, ए मीन्स एब्सेंस, तो AMENORRHEA, एमिनोरिया। तो ड्यूरिंग लेक्टेशन मतलब होता है फीडिंग। जब मदर फीड कर रही है तो बच्चे फीडिंग के ड्यूरिंग, क्योंकि हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई होता है, और जो HPL अगर आप लोगों को याद हो हमने पढ़ा था, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, HPL, ये लेवल बहुत हाई होता है, तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स को नहीं बनने देते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने देते। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
तो ये नेचुरल मेथड में 3 पार्ट्स आते हैं, सेफ पीरियड, कोइटस इंटरप्टर्स एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के अंदर हमने पढ़ा था टेम्परेरी में ही बैरियर मेथड। एक आता था टेम्परेरी नेचुरल मेथड, और टेम्परेरी में नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड। बैरियर में आप लोगों को याद है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कॉन्डम्स फिजिकल बैरियर है। या फिर फीमेल्स यूज करते हैं डायफ्राम्स या सर्वाइकल कैप, सर्विक्स रीजन फीमेल में सर्वाइकल कैप्स। और बैरियर मेथड में और भी चीज़ें आती हैं, एक तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, फिजिकल बैरियर में आ गया कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स। केमिकल बैरियर में आते हैं ओरल पिल्स, दवाइयाँ। तो ये मेथड्स हैं बैरियर मेथड, जिसमें हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अलावा आपकी किताब में जो दिए हुए हैं, दे आर इम्प्लांट्स। ओके, सो नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड, आई होप ये दोनों क्लियर हो चुके हैं सभी को। ये है टेम्परेरी मेथड, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मेथड आप लोगों ने पढ़ा, दैट इज परमानेंट। परमानेंट में 2 पार्ट्स आते हैं, या तो वासेक्टोमी विच इज डन इन केस ऑफ मेल, vasectomy is done in case of male, and tubectomy in case of female. तो वासेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस इन इज कट इन केस ऑफ मेल्स, तो वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। वेराज इन केस ऑफ फीमेल्स, फेलोपियन ट्यूब्स they are cut and tied. The tubectomy is done in case of females and vasectomy is done in case of मेल्स। एंड ये सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, दे आर माइनर एंड जनरली लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब वही चीज़ को सुन किया जाता है जहाँ पे ऑपरेट करना है। एंड दे आर कंसीडर्ड एज सेफ मेथड्स, दे आर परमानेंट, दे कैन नॉट बी रीडन। अगर हम सोचें बाद में ज्वाइन कर दें वास डिफरेंस को, उसकी यूनियन कर दें या फेलोपियन ट्यूब्स की, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट ने इसको, इस चीज़ को पहले गवर्नमेंट मना करती थी, लेकिन फिर इसको आफ्टर, अगर आपको याद हो, जब इंदिरा गांधी का टाइम, मैंने सबको बताया भी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड इट इन द ईयर अराउंड 1971। तो उसमें फीमेल्स की केस में ये लीगलाइज्ड कर दिया गया, बोला गया कि कर सकते हैं गवर्नमेंट, जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा सकता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एसटीडी। एसटीडीज का बारे में आपको बताया था, एसटीडीज दे आर सेक्सुअली transmitted diseases, the diseases or infection which are transmitted from the infected to healthy person through intercourse, through physical contact only. तो इसमें कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरल डिजीजेस हैं, और आप लोगों को डिजीजेस जो कॉमन डिजीजेस पूछी जाती हैं, जैसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल, तो साइफिलिस में आता है, साइफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्पिस। तो ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। आप लोगों को इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी याद करने हैं। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में जैसे हम साइफिलिस की बात करें, तो साइफिलिस के लिए है ट्रोपोनीमा, ट्रोपोनीमा पैलेडियम फॉर साइफिलिस। तो साइफिलिस जो डिजीज है, दैट इज कॉज्ड बाय ट्रोपोनीमा पैलेडियम। गोनोरिया बार बार पढ़ा हुआ है आपने, नाइसीरिया गोनोरिया, NEISSERIA, नाइसीरिया गोनोरिया।
और क्लेमिडियासिस भी है, एड्स है। एड्स तो आप लोगों को पता है HIV वायरस कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस बी इज अगेन वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस वायरस। जो जेनाइटल हर्पीस है, अगेन इट्स अ वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और एसटीडीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? दे अफेक्ट, अगर हम सिम्टम्स की बात करें एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, तो दे अफेक्ट द जेनाइटल रीजन। या तो वहां पे इचिंग होगी, या फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, या पेन होगा, रेडनेस हो सकती है, स्लाइट फ्लूइड डिस्चार्ज। या पेन हो सकता है, या फिर स्वेलिंग हो सकती है। तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज। और इन्फेक्टेड पर्सन को अगर इन्फेक्शन ना, मेनली जो लोग हैं इस चीज़ में नहीं जाते आगे, या इस चीज़ के बारे में नहीं डिस्कस करते, इन्फेक्टेड पर्सन क्यों नहीं जाते? क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, कि लोग क्या कहेंगे इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Even the couple, they fear to go to a doctor if they have the couple both have this kind of disease, क्योंकि वो डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते ही ये बात लगता है कि एज इफ दे आर इनफर्टाइल और दे हैव सम सीवियर प्रॉब्लम, और सब एक ही चीज को समझते हैं, दैट इज एड्स। तो इट इज नॉट लाइक दिस। वी शुड डिस्कस डॉक्टर if we have some kind of a symptom। और जनरली जो ये डिजीजेस हैं, ये एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोग इस एज में हो, प्रोबेबल एज में हो, इसीलिए बार बार बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होना चाहिए। अब कहीं पे फीमेल्स को तो जो पब्लिक टॉयलेट्स हम यूज़ करते हैं, तो इट शुड बी क्लीन, बिकॉज फीमेल में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इवन मेल्स, they carry these infections from the public areas only. So it is better to protect yourself, because these are all bacterial diseases. If you touch the disturbed toilets, मतलब जिसमें जो हम unhygienic toilets या unhygienic taps, जिसमें किसी ने urinate कर दिया है टैप या सीट के आसपास, जैसे मेल्स अगर यूरिनेट करते हैं तो वो सीट सारी खराब हो जाती है, तो फीमेल्स के लिए इट इज हाईली इन्फेक्शियस। It happens. So it is better to take precautions while visiting a public toilet. Even if you're using at home, you should be very careful. इन्फेक्शंस को हम ये बचाया कैसे जा सकता है? इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला प्रिवेंशन तो यही है कि अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। तो जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा रूल है कि मैरिज एक से हो गई तो फिर उसके बाद और नहीं किसी के बारे में सोचते, तो ये यहाँ ठीक है कल्चर। बाहर जो है कल्चर मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर मतलब नहीं, अगर बात बनी या मतलब आप लोगों को पता है, तो वेस्टर्नाइज कल्चर में ये डिजीजेस ज़्यादा हैं, बहुत कॉमन है वहाँ। और अगर ऐसा कुछ है तो यूज़ कॉन्डम और यूज़ प्रिकॉशंस during coitus. Even if there is some demand for medical aid or medical help, we should not avoid, we should not delay this, because seeking help, medical help in case of doubt or getting it cured completely can be done by only a good doctor. So ये आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा एसटीडी के बारे में। दिस वाज कंप्लीट टॉपिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी, जो आपकी किताब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल कपल्स वो होते हैं विच आर अनएबल टू प्रोड्यूस और गिव बर्थ टू अ बेबी। Large number of couples in India, they are infertile, they are unable to produce children in spite of this continued trials. So there are a few reasons. There may be infertility in male or female. So it is diagnosed in infertility clinics. आपने सुना होगा बहुत जगह लिखा होता है, पहले लिखा होता था, कॉमन होता था गुप्त रोगों के लिए, तो दे आर इनफर्टिलिटी रिलेटेड सिम्टम्स ओनली। अभी भी अब तो हैं डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दे आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। तो करेक्टिव ट्रीटमेंट हो तो दे कैन बी क्योर्ड इजीली।
जहाँ कपल्स के लिए करेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता वहाँ हमें इनफर्टाइल कपल्स की हेल्प करते हैं ART. व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. इसमें सबसे पहला प्रोग्राम आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, जिसको हम एक और नाम देते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है IVF टेक्निक. फिर आता है दूसरा गिफ्ट, गिमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. फिर नेक्स्ट आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. और नेक्स्ट आता है AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बहुत ध्यान से आपने सुननी है. जिन कपल के बेबी नहीं हो पाता तो डॉक्टर्स उनको हेल्प करते हैं ARTs मेथड से. ART में क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें डॉक्टर्स असिस्ट करते हैं टू इनफर्टाइल कपल्स टू हैव अ बेबी. और इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इन दिस मेथड एग फ्रॉम अ वाइफ और अ डोनर फीमेल, या तो वाइफ का ही एग होगा या किसी भी डोनर फीमेल से, एंड स्पर्म्स फ्रॉम अ हस्बैंड और अ डोनर, they are allowed to fuse within a test tube under stimulated condition. इसीलिए इसका नाम एक और आता है जो मैंने अभी बताया, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब. जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट जब वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है 16 to 32 सेल स्टेज में आता है, देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस ऑफ और फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, एंड दैट पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET. तो टेस्ट ट्यूब बहुत इजी था. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आई होप इट इज क्लियर. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग फ्रॉम अ वाइफ और अ डोनर एंड स्पर्म्स फ्रॉम अ हस्बैंड और अ डोनर आर अलाउड टू फ्यूज अंडर appropriate या stimulated condition outside the body of female. That is why it is known as in vitro fertilization. Zygote turns into an embryo, early embryos को बोलेंगे हम, 16 to 32 cell stage. It is transferred into the uterus या फिर fallopian tube, और इसको बोलते हैं embryo transfer. फिर नेक्स्ट आता है GIFT. GIFT इज व्हाट? गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ एग फ्रॉम अ डोनर फीमेल, किसी और फीमेल का, इट इज हेयर वाइफ इज नॉट इन्वॉल्व. तो इसमें डोनर फीमेल अलग होगी, जो फीमेल नहीं दे पा रही एग, उसमें किसी और बॉडी से, किसी और फीमेल से एग हमने लिया और ट्रांसफर किया, बट उसको हमने सूटेबल कंडीशंस दी टिल फर्टिलाइजेशन. बाकी डेवलपमेंट उस फीमेल की बॉडी में की गई टिल पार्चुरेशन. आई एम रिपीटिंग, इन दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओवम from a donor female into another female who cannot produce ova, and providing them suitable providing that part a suitable condition for fertilization, and further development of fetus to till parturition is done within the female body. तो इसीलिए इसको बोल दिया गया गिफ्ट. गिफ्ट बिकॉज वी आर ओनली गमीट इज इन्वॉल्व, वी आर ट्रांसफरिंग गमीट ओनली. नेक्स्ट आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसको जिफ्ट भी बोला जाता है, इस पार्ट को गिफ्ट में या फिर जिफ्ट, बिकॉज वी कैन ट्रांसफर ईदर गमीट और द ज़ाइगोट. फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इन दिस स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ओवम. ओवम में सीधा इंजेक्ट किया गया आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इन अ लैब. तो स्पर्म को इंजेक्ट किया ओवम में, एम्ब्रियो फॉर्म हुई लैब में, फिर एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफर किया फीमेल बॉडी में. एंड लास्ट मेथड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये हम ज़्यादातर कैटल्स में करते हैं. सीमेन हम लेके आते हैं, मे बी इट इज़ डन इन केस ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो. आपने मूवीज देखी होंगी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, विकी डोनर जो मूवी है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली. तो सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, is artificially transferred into the vagina to the uterus. तो artificially हम उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. और इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है,
that is amniocentesis. एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है जिसमें हम बच्चा पैदा होने से पहले, तो इट इज अ प्री नेटल डायग्नोसिस, बच्चा पैदा होने से पहले हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो प्री नेटल डायग्नोसिस जिसमें फीमेल का एमनियोटिक फ्लूइड, एम्ब्रियो का, याद है हमने फीटस में की थी मेम्ब्रेन्स, एमनियन, कोरियन, योक सैक, एलेंटॉइन, तो योक जो सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड था एमनियन में, तो उसका सैंपल लिया जाता है फ्रॉम द वूम ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, इज टेकन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, और इन सेल्स को निकाल के हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, एंड दीज सेल्स कैन बी यूजफुल टू ऑब्जर्व एनी क्रोमोसोमल, सुनना जरा बड़े ध्यान से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या एब्रेशन। जनरली उनको क्या किया जाता है, देखो फीमेल के स्टमक में बेबी है, तो बेली में बेबी है, बेबी यहाँ से अटैच्ड है, लेकिन इसके बेबी और ये मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। तो सिरिंज लगाते हैं टमी में फीमेल के साइड से, और सिरिंज से वो फ्लूइड निकाल लेते हैं, फ्लूइड निकालने के बाद उसको प्लेट में कल्चर करते हैं, और फिर उसको डिटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम्स को। तो इससे क्रोमोसोम में ऑब्वियसली अगर दो लास्ट वाले सेम आए तो इट इज फीमेल, और अगर एक पूरा है और आधा हाफ है तो इट इज अ मेल। तो बार बॉडीज जो आपने सुनी हुई है, बार बॉडी क्या होती है, जितनी बार बॉडी ज्यादा होंगी उतनी फेमिनिन कैरेक्टर। तो मेल में बार बॉडीज क्या होती हैं, 0, क्योंकि इस एक्स को हम काउंट नहीं करेंगे। फीमेल में बार बॉडीज कितनी होती हैं, 1। इसमें बार बॉडी कितनी, जितने एक्स्ट्रा एक्स होंगे, एक तो एक्स सभी में, इसमें बार बॉडीज कितनी है, 2। इसमें बार बॉडी कितनी है, 1। इसमें बार बॉडी मेल है, इसमें तो ये हाफ ही है, एक्स दूसरा है ही नहीं, तो इट इज 0। तो बार बॉडीज दे कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो जनरली ये क्या किया जाता था पहले, वैसे हमने ये यूज किया था टेक्निक टू फाइंड एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर कोई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, सपोज जो हमारे सारे क्रोमोसोम्स हैं सबको पता है कि पेयर में होने चाहिए, क्रोमोसोम हमेशा 2 होने चाहिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दिस इज हाउ टिल 22 क्रोमोसोम। लेकिन जो 21 जब क्रोमोसोम आया तो 2 की बजाय वो 3 हो गया, डिजीज हो जाती है, पता है सभी को, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। तो अगर ऐसे अगर डिजीजेज आएंगी, मतलब अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, मोर देन रिक्वायर्ड होगा, तो डिजीजेज होंगी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बोलते हैं इसको। तो डिटेक्शन में इजी होता था, लेकिन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, इट इज मिसयूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द नॉर्मल फीटस ऑफ फीमेल फीटिसाइड के लिए, क्योंकि इट कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ द सेक्स ऑफ अ फीटस। Now this detection of sex by amniocentesis has been banned. So this was the reason. तो कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो चुका है, प्लीज रेज योर हैंड। Okay, this chapter was quite easy. So on Friday you all have your test from the chapter. You all have your test from only third chapter, and I'm going to discuss few questions from chapter 3. This chapter is easy, so should I do quick revision from this chapter? Many students have joined in just now only, so I'm just giving a quick revision from this chapter. तो हमने जो ये चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हेल्थ अफेक्ट करती हैं 3 फैक्टर्स से, इट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डेफिशिएंसीज, या इन्फेक्शन, या लाइफस्टाइल। ये तीनों आपके एनसीईआरटी में गिवन है इसी सीक्वेंस में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन और या लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपका खाना आता है, आपका पानी आता है, आपका रेस्ट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी हैबिट्स। तो इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स आए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स में तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स में सबसे पहला प्रोग्राम था RCH, जो पॉपुलरली
काफी पॉपुलर प्रोग्राम था। RCH की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका मेन एम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, अडोलेसेंस और चेंजेस, इवन योर हाइजीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर दी STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर मैंने जो ये लिखा हुआ है BC मेथड्स, दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ, इसमें नॉलेज दी गई, किसकी नॉलेज दी गई? बर्थ कंट्रोल मेथड्स की, जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल को प्री और पोस्ट नेटल केयर। प्री और पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या है? बच्चा पैदा होने से पहले प्री नेटल, बच्चा होने के बाद पोस्ट नेटल। प्री नेटल तो प्रेग्नेंट फीमेल की केयर होगी, पोस्ट नेटल में दोनों मदर एंड चाइल्ड केयर। फिर ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस, फिर इनफर्टाइल कपल्स को बताया गया कि, या फिर मैरिजेबल एज बढ़ाई गई, और अदर गोल्स ऑफ दिस RCH प्रोग्राम्स। अब हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा प्री नेटल और पोस्ट नेटल, तो इसके लिए दिस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें अभी बताया प्री नेटल और पोस्ट नेटल बच्चे के बारे में। prenatal or postnatal care, prenatal care only for pregnant females and postnatal for both mother and child। इसमें, इस केयर में मैंने आपको शायद बताया था कि फीमेल्स जो बच्चों के लिए अरेंज की गई, मिडवाइव्स होती हैं जो नर्सेस, ट्रेन्ड मिडवाइव्स, न्यूली वेड कपल्स को एजुकेट किया गया अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली। जो फीमेल्स, जो बच्चे, अनफॉर्चुनेट बच्चे जिनकी मदर्स की डेथ हो जाती थी, उनके लिए अरेंज किया गया एक मिल्क फीडिंग प्रोग्राम, जिसमें अगर कोई फीमेल डोनेट करना चाहती है, लेक्टेटिंग मदर है, उसका बच्चा नहीं पी रहा दूध, लिया फिर उसके एक्स्ट्रा मिल्क आ रहा है, तो दे कैन डोनेट, दे कैन प्रिजर्व देयर मिल्क फॉर दी अदर बेबीज हु आर अनफॉर्चुनेट। तो इसमें ये चीजें आई। और फिर इसके बाद जब इतना अच्छा होना शुरू हो गया कि मदर को भी बचा लिया, बच्चे को भी बचा लिया, एक्सप्लोड होनी शुरू हो गई, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई, टेक्नोलॉजीज बहुत आ गई, लिविंग लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डबल होती थी, इट वाज 2 बिलियन इन 1900 AD, तो 6 बिलियन हो गई इन 2000 AD। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन जो टॉप पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मदर जो मरनी शुरू हो गई, बंद हो गई, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ काफी मदर्स की डेथ हो जाती थी। दिस इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या बच्चा पैदा होते ही मर जाता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये दोनों चीजें डिक्लाइन हो गई। और नेक्स्ट आपको बताया डिक्लाइन इन डेथ रेट। इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन जो है, रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा बढ़ गई। रिप्रोडक्टिव एज मैंने आपको बताया था, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयड एज इज रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब 15 ईयर्स से 50 ईयर्स तक की एज को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग यही हैं, तभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसी टाइम पे हम वर्क कर सकते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इन सब की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड। और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस, एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ी फॉर एनर्जी, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, इन सब चीज़ों के लिए। और इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी आई? सबसे पहले दी है सोशल इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मतलब रहने को जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, फूड नहीं था, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, और अल्टीमेटली लीड्स टू पॉवर्टी। और इसके साथ साथ जो अब हो रहा है इको डिग्रेडेशन, हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, और सैनिटाइजेशन। मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि फ्लड्स बहुत आ रहे हैं, और फ्लड्स आने की वजह से क्या है? सैनिटाइजेशन, जो गंदा पानी है वो हमारे पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा है, दैट इज सैनिटाइजेशन। तो ये प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो अब इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स आए। और इस, जैसे मैंने अभी बताया कि एनसीईआरटी में दिया है डबलिंग टाइम फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इज 35 years. I think it is given 33 years. Please check that. So 33 years is doubling time for population.
और अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी अर्थ में ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हो जाएगी। कैसे हम बचा सकते हैं? तो इसमें कुछ मेथड्स दिए गए। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एजुकेट किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बनाए गए, मैरिजेबल एज को इंक्रीज किया गया एंड एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली बताया गया लोगों को। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में बर्थ कंट्रोल मेथड्स थे, तो बर्थ कंट्रोल में मेथड्स आते हैं टेम्परेरी, परमानेंट और एमटीपीस। तो अगर हम बात करें टेम्परेरी मेथड में, तो टेम्परेरी मेथड में नेचुरल और दिस बैरियर मेथड। नेचुरल में आपको बताया था सेफ पीरियड ओव्यूलेशन को छोड़ के बाकी पीरियड को सेफ पीरियड माना जाता है। जब एग फॉर्म होता है या एग जब रप्चर होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट पीरियड इज कंसीडर्ड एज सेफ। आप लोगों को पता है ओव्यूलेशन अकर्स ऑन 14th डे, बट कई फीमेल्स में फ्लक्चुएट होती है। तो 14 to 17 डे इज द रिप्रोडक्टिव फेज, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके अपार्ट जो दैट इज कंसीडर्ड एज सेफ पीरियड, नेचुरल मेथड लोग इसी को ध्यान देते हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे ज़्यादा हैं। कोइटस इंटरप्टस, इसमें मेल जो है अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं बिफोर इजैकुलेशन फ्रॉम फीमेल वेजाइनल पार्ट। लैक्टेशनल एमिनोरिया में आप लोगों को बताया था कि जो फीमेल फीड करती हैं, जो फीडिंग फीमेल्स हैं, वो उनमें एब्सेंस होता है मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, क्योंकि उसमें हार्मोन्स डिफरेंट चल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और एचपीएल, उनके इन्फ्लुएंस में दूसरे हार्मोन्स नहीं आते, तो उस टाइम पे एब्सेंट है मेंस्ट्रुएशन। बैरियर में आप पढ़ चुके हो, फिजिकल बैरियर में जिसमें कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, इवन कुछ जेलीज आती हैं, स्पर्मिसाइडल जेली। और केमिकल मेथड में आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इवन इम्प्लांट्स भी आते हैं। तो दीज आर बैरियर मेथड। ये बहुत अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, यू हैव टू लर्न each and every line that is given in your NCERT about this method. फिर आता है permanent में आपको बताया था vasectomy that is done in case of male and tubectomy that is done in case of female। ये irreversible methods हैं, permanent method है, और इसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था in the year 1971 in India। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एसटीडी। एसटीडी के बारे में बात थी, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें कुछ डिजीजेस बैक्टीरियल हैं, जैसे साइफिलिस बताया, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलेडियम। गोनोरिया कॉज्ड बाय नेसीरिया गोनोरिया। एड्स कॉज्ड बाय अ वायरस एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। जेनिटल herpes is again caused by human papilloma virus। इन सब डिजीजेज में, एसटीडीज में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में सिम्टम क्या होते हैं? इसमें इचिंग होगी आपके ग्रोइन में, आपके जेनिटल एरिया में, फिर फ्लूइड डिस्चार्ज होगा और पेन भी होगी, स्वेलिंग होगा, रेडनेस हो गई उस रीजन में। तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएट हेल्प लेनी चाहिए, बट लोग नहीं जाते। रीज़न इज सोशल स्टिग्मा, कि लोग क्या कहेंगे अगर आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाओगे। तो मेन रीज़न इज that they don't visit the doctors is the social stigma। और जो एज है जिसमें ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, वो आप लोग इस एज में हो 15 to 24 years, तो diseases are reported to be high among these individuals। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। तो सबसे पहला है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। तो नेक्स्ट इज यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। लास्ट आपको बताया था मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए इन केस ऑफ डाउट, इवन इफ इट इज स्लाइड, and it is not always that you carry it during intercourse or during copulation only. They can be carried, these diseases, as these are bacterial unhygienic places में हम visit करते हैं, then also you can carry these disease when you visit public toilets। So it is better to use the safe conditions या safe hygienic areas। Next is infertility। एक टॉपिक था infertility। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स इन इंडिया दे आर इनफर्टाइल, दैट मीन्स दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो इनफर्टिलिटी कैन बी इन फीमेल्स और मेल्स, दोनों में कोई ना कोई डिफिशिएंसी हो सकती है। इट कैन बी डायग्नोस्ड इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ओनली,
and जब corrective treatment मिले तो infertility can be treated with the help of these techniques, ART, assisted reproductive technologies. इसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब में हम इन दिस मेथड टेस्ट ट्यूब में इसको दूसरा नाम दिया है, लिखा हुआ है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो ओवर फ्रॉम एग ऑफ अ वाइफ, फीमेल का जो मेल और फीमेल कपल है, वाइफ का एग या फिर डोनर फीमेल का एग, मेल का sperm from a husband or a donor are allowed to fuse in a test tube under stimulated condition, and that is why it is known as in vitro fertilization. जब zygote बन जाता है, डिवाइड होता है 16 to 32 cell stage which is known as early embryo, then it is transferred into the uterus or fallopian tube, and that is why it is known as ET, embryo transfer. Next is gamete intrafallopian transfer. Gift बोला जाता है in this transfer of egg from a donor female into another female जो produce नहीं कर पा रही होगा and but can provide suitable condition for development of fetus up to parturition. Female में egg नहीं बन रहा but बाकी सब ठीक है, तो उसमें हम transfer करते हैं gamete from a donor female. ICSI लिखा हुआ है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसमें स्पर्म को हम इंजेक्ट करते हैं इनटू एग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैब एंड देन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर. तो एग है, एग में हम इंजेक्शन से माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं जिससे हम इंड्यूस करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. और जब वो एम्ब्रियो बन जाती है तो एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं फीमेल में. लास्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. Insemination का मतलब है semen from a husband or a donor is artificially introduced into the vagina या uterus of female. तो artificial insemination, ये सारे assisted reproductive technologies हैं. Last topic जो आपने पढ़ा, I think everyone was there in the last topic, that is amniocentesis. Prenatal diagnosis, बच्चा पैदा होने से पहले ये टेक्निक है जिसमें हम amniotic fluid from a pregnant female is taken during early stages of fetal development. फिर इन cells को निकाल के कल्चर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. By this we can analyze the chromosomal abnormalities if there is any in the fetus, but it is misused for destroying female fetus. That means to kill female fetus. That is why determination of sex by amniocentesis has been banned. तो क्लास आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है. On Friday you all have tests from chapter 3. Do read that chapter from your NCERT, and if you have any doubt just let me know. I'll be sending more questions today. ठीक है? And बच्चे अपनी तैयारी करते रहो. You all have your exams in September month, and I want कि आप लोग +2 भी अच्छे से कर लो, क्योंकि you never know whether you are going to get admission on the basis of your +2 marks in the next year or on need basis. So it is better to prepare yourself for +2 first. Okay? So take care everyone. Bye-bye for now. Thank you, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Thank you, Okay, ma'am. okay. Okay, बच्चों, take care. Bye.